Charging of LCR circuit, as we have the second order differential equation, second order differential equation for charging of a capacitor through inductor and resistance can be expressed as d2q by dt square plus R by L dq by dt plus q by LC minus V0 by L is equal to 0, and this can be simplified as d2x by dt square plus 2b dx by dt plus omega square x is equal to 0, where 2b is equal to R by L, omega square is equal to 1 by LC, x is equal to q minus V0c, this is q minus q0x. So, if we take this is equation 1, here it is equation 2, let the solution of equation 2 is given as x is equal to a e raised to the power alpha t and dx by dt is equal to a alpha e raised to the power alpha t, d2x by dt square is equal to a alpha square e raised to the power alpha t. Substituting these values, we have x alpha square plus 2b alpha plus omega square is equal to 0, since x is equal to a e raised to the power alpha t is not equal to 0. क्यों? क्योंकि हमने assumed किया है, assumed, उसको assumed किया है इसलिए 0 नहीं होगा. Then alpha square plus 2b alpha plus omega square is equal to 0, and its solutions are alpha is equal to minus b plus minus under root b square minus omega square, b square minus omega square. This is minus b plus minus p, where p is equal to under root b square minus omega square. So, the assumed syllabus solution, assumed
solution can be expressed as this is x is equal to a1 e raised to the power minus b plus p t plus a2 e raised to the power minus b minus p t. A1 and A2 are arbitrary constant. And x, what is x? X is q minus q0. X is q minus q0. So, q minus q0 is equal to a1 e raised to the power minus b plus pt plus a2 e raised to the power minus b minus p t. Here it is minus साइन, इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस. सो दिस इज q ऑफ t इज इक्वल टू q0 प्लस a1 e raised to the power minus b plus pt plus a2 e raised to the power minus b minus pt, है ना. और आप इसका नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर यहां 2 था, दिस वन इक्वेशन नंबर 3 x का, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 4, हियर इट इज इक्वेशन नंबर 5, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. Equation number 8. This is the expression which express the status of charge on the capacitor at given time t, this time t. ग्राफ मैंने आपको बताया कि when t is equal to 0, मतलब पॉइंट 3 को 1 से कनेक्ट करने से जस्ट पहले जब टाइम स्टार्ट किया जाए, तो जब टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम पे when t is equal to 0, कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा 0. ठीक है, मतलब जब कनेक्ट करेंगे उसके बाद चार्ज जाएगा. जो जब कनेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर चार्ज तो 0 ही था, तो जब चार्ज 0 हो गया तो करंट कितना हो गया, वो भी 0, dq by dt is 0. तो हम इसको इक्वेशन नंबर 8 को जो a1 और a2 वैल्यू है इसको निकालना है ना. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, द इनिशियल कंडीशंस आर एज, क्या है, when t is equal to 0, when t is equal to 0, q of t is equal to 0 and I of t is also equal to 0. I of t is also equal to 0. ये कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 8 में. Substituting in equation 8, we have qt 0, this is 0, is equal to q0 plus a1 e raised to the power minus b plus p into time, टाइम की वैल्यू क्या है 0, t is equal to 0 plus a2 e raised to the power minus b minus p into 0. जहां जहां t है वहां वहां हमने 0 रख दिया और q of t is also 0. तो एक्सपोनेंशियल का पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.
तो ये हो गया, दिस इज 0 इज इक्वल टू Q0 प्लस A1 प्लस A2, है ना। Q0, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये भी एक्सप्रेशन 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाई A1 इज A1, 1 मल्टीप्लाई A2 इज A2। तो यहां से क्या होगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू माइनस Q0, है ना। ये मिल गया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू माइनस Q0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन 9 हो गया, ठीक है। अब आइए, तो चार्ज से रहा सॉरी, करंट का क्या होगा, करंट को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, चार्ज को। तो I ऑफ t current will be given as I of this t is equal to dq by dt, dq by dt, dq क्या है, ये q है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो Q0 फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और e रेज़ टू द पावर माइनस b प्लस टी इंटू टी, तो ये पूरा जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आप कर दीजिए, दिस आई टी इज इक्वल टू 0 प्लस A1 मल्टीप्लाई होगा माइनस b प्लस p e रेज़ टू द पावर माइनस b प्लस p इंटू टी प्लस A2 माइनस b माइनस p e रेज़ टू द पावर माइनस b माइनस p इंटू टी, ठीक है। करंट का इक्वेशन हो गया। अब इस करंट के एक्सप्रेशन में t का मान 0 होगा, t का मान 0 होगा, तो IT का मान क्या होगा, वो भी 0 हो गया। 0 का मतलब क्या, सेंस समझिए, जैसे आप स्विच ऑन करना चाहते हैं तो स्विच के ऊपर उंगली रखिए, वहां से टाइम काउंट होगा। तो जैसे स्विच के ऊपर उंगली रखेंगे, क्या लाइट जलेगा, नहीं, तब तक अंधेरा रहेगा। जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन इनिशियली बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इसीलिए कहा जाता है। सो दिस इज 0, 0 इज इक्वल टू, इसको 0 लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, बट इफ यू राइट देन इट्स नो प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज A1 माइनस b प्लस p, और e रेज़ टू द पावर, फिर ये 0 हो जाएगा, तो 0 का मान कितना हो जाएगा, देन इट इज 1, दिस इज 1 प्लस A2 माइनस b माइनस p, एंड देन इट इज 1, क्योंकि t का मान 0 हो रहा है, t का मान 0 होगा तो e रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास एक इक्वेशन 9 आ गया है, किस रूप में, A1 प्लस A2 के रूप में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इक्वेशन हम ऐसे निकालें जिसमें A1 माइनस A2 आ जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए देखिए, ये एक फैक्टर है माइनस b, एक फैक्टर है माइनस b, तो यदि हम माइनस b कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। और यहां पे p है, यहां पे माइनस p है, तो केवल p कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, है ना। फैक्टर्स को कॉमन लिए, A1 प्लस A2 कितना है, माइनस q का, तो दिस इज 0, 0 इज इक्वल टू माइनस b माइनस q प्लस p A1 माइनस A2, है ना। तो माइनस b माइनस q क्या होगा, b q प्लस p A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो माइनस आ जाएगा, दिस इज माइनस b q, दिस इज माइनस बी क्यू, और ये p मल्टीप्लाई है तो p से ये
डिवाइड हो गया। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए माइनस बी क्यूब अपॉन पी, ए माइनस बी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो a प्लस बी इज माइनस क्यू, और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस क्यू। तो माइनस क्यू क्या जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू जीरो। दिस इज क्यू जीरो, दिस इज योर क्यू जीरो। तो दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन में a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो, अरे सॉरी a1 प्लस a2, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस b क्यू जीरो p, है ना। ये तो दो वेरिएबल है a1 a2, दो इक्वेशन हो गए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका मान a1 a2 का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ दीजिए फिर घटा देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस है a2 प्लस है और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग दी एबव, तो क्या होगा, 2a1 इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो माइनस बी क्यू जीरो बाई पी, है ना। तो यहां पे क्यू जीरो है, यहां पे क्यू जीरो है, इसको कॉमन ले लें तो ये होगा माइनस क्यू जीरो 1 प्लस बी बाई पी। ठीक है, तो a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो बाई 2 1 प्लस बी बाई पी, ये a1 की वैल्यू होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2a2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी क्यू जीरो बाई पी, है ना। दिस इज माइनस का प्लस, सो सॉरी दिस इज क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी अपॉन पी। तो a2 का मान क्या होगा, a2 इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो बाई 2 1 माइनस बी बाई पी, दिस इज a2, है ना। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो इक्वेशन x यहां पे हमने लिखा था उसमें क्या है कि a1 और a2 लिख दिया। अब a1 a2 की वैल्यू आ गई, है ना, a1 a2 की वैल्यू आ गई, तो a1 a2 की वैल्यू लिख दे। तो ये जो इक्वेशन 8 है, इस इक्वेशन में a1 a2 की वैल्यू रख दिया जाए, तब जो इक्वेशन आएगा दैट इज नोन एज मोस्ट जनरल इक्वेशन, है ना, फॉर चार्ज। तो वो कितना होगा, the most general equation for charge on capacitor is expressed as Q T is equal to Q0 प्लस A1। A1 की वैल्यू में क्या है, माइनस Q0 बाई 2 1 प्लस B बाई P e रेज टू द पावर माइनस B प्लस P इंटू T। ठीक है, ये A1 की वैल्यू रख दिया और ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल हो गया ये। उसके बाद क्या है, फिर प्लस A2, A2 की वैल्यू क्या है, माइनस Q0 बाई 2 1 माइनस B बाई P e रेज टू द पावर माइनस B माइनस P इंटू T, ये है ना।
अब ये इसके जगह पे माइनस Q0/2 दोनों जगह है, वी कैन टेक इट कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू सी उसके साथ कुछ और कॉमन ले लीजिए, Q0 माइनस Q0/2 और P भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया P, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, P प्लस B e रेज़ टू द पावर माइनस B प्लस P T, और यहां से भी माइनस Q0/2P कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा प्लस P माइनस B e रेज़ टू द पावर माइनस B माइनस P इंटू T, है ना, दिस इज QT। और इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो रहा है, 10 हो गया, 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब ये मोस्ट जनरल इक्वेशन किसके लिए, चार्ज का हो गया, मोस्ट जनरल इक्वेशन करंट का निकालना, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, द मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर करंट is given as, अब IT is equal to, इसको आप Q0 है, Q0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस Q0/2P, ये तो बाहर ही रहने दीजिए, अंदर क्या हो रहा है, B प्लस P, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस B प्लस P e रेज़ टू द पावर माइनस B प्लस PT, ठीक है, प्लस P माइनस B, और ये डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका माइनस B माइनस P e रेज़ टू द पावर माइनस B माइनस PT, ये हो गया, जो एक्सपोनेंशियल पावर है E का वो मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, I ऑफ t इज इक्वल टू Q0/2P ब्रैकेट में, देखिए ये दिस इज, आप इसको यहां पे B प्लस P लिखे थे, P प्लस P हो गया था, यहां पे B प्लस P है, यहां पे माइनस B प्लस P है, तो ये फैक्टर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे जैसे A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा फैक्टर जो है वो P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, और एक्सपोनेंशियल का पावर क्या हो रहा है, दिस इज माइनस B प्लस P T, है ना। फिर अब आइए यहां पर देखिए P माइनस B है, और ये माइनस B और माइनस P, तो माइनस कॉमन निकाल दें, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये साइन माइनस हो गया, तो क्या होगा, B प्लस P हो गया, तो फिर यहां भी P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस B माइनस P ऑफ T, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां से देखिए, दिस इज P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां क्या है? पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या कर दें? माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह माइनस हो गया। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या है? यहां पे ये माइनस साइन छूट गया, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2p माइनस ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बी प्लस टी, और ये माइनस पहले ही से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बी प्लस दिस इज माइनस पी ऑफ टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर तो सिंप्लीफाई हो गया। अब ये माइनस साइन है, इसको अब अंदर की तरफ ले जाइए, या ओमेगा स्क्वायर को बाहर की तरफ ले आइए। ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ आएंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p, क्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2p, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर माइनस पी प्लस माइनस बी प्लस टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बी माइनस पी इंटू टी। ये दिस इज योर आई टी, दिस इज द आई टी। मतलब मोस्ट जनरल इक्वेशन जो होगा वो आपका ये हो गया। दिस विल बी, माइनस निकाले हैं तो दिस विल बी माइनस साइन, दिस विल बी माइनस साइन। तो ये इक्वेशन 11 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 10 में और इक्वेशन 11 में और फिर इक्वेशन 12 में करेंट का और चार्ज का इक्वेशन में हम इसमें क्या करेंगे कि प्लॉट करेंगे ग्राफ, या ग्राफ को चलिए ठीक है, केस वाइज ले दीजिए। केस 1, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्यों? ओके, सो दिस इज पी इज क्या से पॉजिटिव हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन नंबर 11 है, इक्वेशन 11, this q of t is equal to q0 minus q0 to p plus p e raised to the power minus b plus pt, और इसी फैक्टर को यहां भी आने दें तो दिस इज माइनस p माइनस b e रेज टू द पावर माइनस b माइनस p ऑफ t। ठीक है, और करंट का इक्वेशन 12, आई टी इज इक्वल टू q ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p e रेज टू द पावर माइनस b प्लस t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बी माइनस पी, या माइनस क्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p, दिस इज टी, दो टर्म। ठीक है, प्लॉट क्या होगा? करेंट का छोटा है, दो टर्म है, करेंट का दो टर्म है, छोटा है,
तो इसकी प्लॉट कैसे होगा? इसका प्लॉट देखिए, माइनस बी प्लस पी, माइनस बी प्लस पी, माइनस बी प्लस पी, ये क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? माइनस बी प्लस पी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? और माइनस बी माइनस पी, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? यहां तो दोनों निगेटिव दिख रहा है, माइनस बी माइनस पी दोनों निगेटिव दिख रहा है, तो इसमें पक्का निगेटिव ही होगा। पहले वाले में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से बड़ा है, निगेटिव क्वांटिटी b इज ग्रेटर देन p। तो जैसे कुछ ऐसा हो गया कि -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 और -5 - 3 इज इक्वल टू -8, यही हुआ ना, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी निगेटिव क्वांटिटी और ये भी निगेटिव क्वांटिटी, दोनों निगेटिव हो रहा है, एक निगेटिव ज्यादा है, दिस इज -2 और -8। तो एक्सपोनेंशियल के पावर यदि निगेटिव होगा, एक्सपोनेंशियल के पावर निगेटिव होगा तो करंट क्या होगा? घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा। तो अब देखिए ये क्वांटिटी फर्स्ट पार्ट जो है ये प्लस साइन के साथ है ना, और ये दूसरा माइनस साइन के साथ है, मतलब ये जीरो होगा तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? क्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये, और उतना ही वैल्यू ये क्या है? निगेटिव है, तो माइनस क्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2p, ये भी निगेटिव है। ठीक है, अब यहां से पहले टर्म क्या है? e रेस टू द पावर माइनस बी प्लस पी टी, ये ठीक है। तो इसकी निगेटिव मतलब कुछ ऐसा है e रेस टू द पावर -2t, है ना, यहां से देखेंगे तो क्या हो रहा है? e रेस टू द पावर -2t, और यहां पे क्या हो रहा है? e रेस टू द पावर -b माइनस पी टी, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये किस तरह का हो रहा है? e रेस टू द पावर -8t, ये हो रहा है -8t। तो ऊपर जो होगा 0 से ये y पॉजिटिव में e रेस टू द पावर -2t के हिसाब से डिक्रीज होगा, और नीचे क्या होगा? -8। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव डोमेन में धीरे धीरे घटेगा और निगेटिव डोमेन में बहुत तेजी से घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बना सकते? बहुत तेजी से घट रहा है, उसका ग्राफ तो हम इस तरह से बना दिए, बहुत तेजी से घट रहा है ये दिस वैल्यू, और कम घटना तो दोनों में है, टाइम के साथ कम के लिए ऐसे कर दिए। ठीक है, मतलब इसको ऐसे नहीं किए, ये नहीं कर रहे हैं, है ना। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू है e रेस टू द पावर -2t के रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या है? -8 के रिस्पेक्ट में है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में भी डीके और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी डीके, एंड दिस इज कॉल्ड हैविली डैम्प्ड। क्यों? दोनों में निगेटिव साइन है और दोनों में डीके हो रहा है, तो इसको कहते हैं, दिस केस इज हैविली डैम्प्ड चार्जिंग। ठीक है, चार्ज बढ़ा तो इस तरह से तेजी से हो गया। पहला केस हो गया व्हेन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। दूसरा केस, क्या है? व्हाट इज द सेकेंड?
when b square is approximately equal to omega square. Case 2, when b square is equal to omega square, is equal to, जैसे 5 है और 4.9 है ना, 5 और 4.9, तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी, है ना, पी वो क्या होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, वेरी स्मॉल, जैसे 5 और 4.9, तो 5 माइनस 4.9 कितना होगा, 0.1, और 0.1 का अंडर रूट 0.01, है ना, तो और कम हो रहा है क्वांटिटी, सो इट इज वेरी स्मॉल. अब इस वेरी स्मॉल होने से क्या है कि एक्सपोनेंशियल जो है e रेज टू द पावर माइनस बी प्लस पीटी, है ना, माइनस बी प्लस पीटी, यहां पे e रेज टू द पावर माइनस बी माइनस पीटी है, तो माइनस बी तो दोनों जगह है ना, माइनस बी तो दोनों जगह है, तो e रेज टू द पावर माइनस बीटी तो हम कॉमन ले ही सकते हैं. देखिए इसमें क्या है, e रेज टू द पावर माइनस बी प्लस पीटी है मान लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर माइनस बीटी इंटू e रेज टू द पावर प्लस पीटी लिख सकते हैं ना इसको, और e रेज टू द पावर माइनस बी माइनस पी टी है, तो इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस बी टी इंटू e रेज टू द पावर माइनस पी टी. ठीक है, अब p का मान बहुत कम है, तो p का मान बहुत कम है, तो e रेज टू द पावर pt, p का मान कम है तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पीटी. अब देखिए e रेज टू द पावर pt को लिख सकते हैं 1 प्लस पीटी, और e रेज टू द पावर माइनस पीटी को लिख सकते हैं 1 माइनस पीटी व्हेन p इज वेरी स्मॉल. ठीक है, बाइनोमियल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से. तो इसकी वैल्यू को यदि रख दे, है ना, तो बहुत ज्यादा हमारा एक्सप्रेशन आसान हो जाता है. कैसे, देखिए क्यू का ये एक्सप्रेशन है, दिस इज क्यू फ्रॉम इक्वेशन 11, qt is equal to q0 by 2p, q0 and this is b minus b plus p e raised to the power, है ना, e raised to the power माइनस bt और 1 प्लस पीटी, 1 प्लस पीटी लिख दी. दूसरा टर्म क्या है, माइनस बी माइनस पी ई रेज टू द पावर माइनस बी टी इंटू 1 माइनस पीटी. हो गया, तो इसके वजह से क्या हो गया, अब देखिए आप ये टर्म को तो बाहर निकाल लिए, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटी यदि बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा Q0 माइनस Q0 बाई 2p इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बीटी, और ब्रैकेट में आइए, है ना, ब्रैकेट में क्या है, b प्लस p 1 प्लस पीटी माइनस b माइनस p 1 माइनस पीटी. ठीक है, एक तो ये हो गया यहां से. इसके पहले जो इक्वेशन था उससे भी हम निकाल सकते थे, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके होगा इनिशियल एक्सप्रेशन.
क्या था इनिशियल एक्सप्रेशन, आप देखिए Qt is equal to Q0 minus A1 e raised to the power minus B plus T minus A2 e raised to the power minus B minus P of T. ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। अब इस एक्सप्रेशन में दिस इज Q0 माइनस e रेज टू द पावर माइनस bt कॉमन निकाल लेते हैं, e रेज टू द पावर माइनस bt कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, a1 1 प्लस pt माइनस माइनस प्लस a2 1 माइनस pt। ठीक है, तो ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब a1 प्लस a2 हो गया, a1 प्लस a2 हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या है, दिस इज a1 माइनस a2 p इंटू टी। तो a1 प्लस a2 को एक कांस्टेंट ले लिया, दिस इज a1 प्लस a2 इज ए कांस्टेंट, a प्लस b t e रेज टू द पावर माइनस bt माइनस Q0 इज इक्वल टू Qt। ठीक है, कांस्टेंट में क्या है, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 और b इज इक्वल टू a1 माइनस a2 इंटू p, ये कांस्टेंट्स। छोटा हो गया ना ये एक्सप्रेशन, इसके तुलना में थोड़ा छोटा हो गया। हम छोटा क्यों लिखे हैं, हम जानबूझ के इसको लिखे हैं कि इसमें जो दो फैक्टर आ रहा है, एक e रेज टू द पावर माइनस bt एक्सपोनेंशियल और दूसरा ये फैक्टर हो गया a प्लस bt, a प्लस bt। a प्लस bt क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसे इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, टाइम के साथ में क्या होगा, टाइम के साथ में ये होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, ये यदि x है और ये y है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, तो अंतर क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन में एक टर्म मिल रहा है जो एक्सपोनेंशियल डीके है और एक टर्म मिल रहा है जो स्ट्रेट लाइन इंक्रीज कर रहा है। अगर इस कंडीशन को मानने से एक फैक्टर मिल रहा है इंक्रीजिंग का, है ना, a प्लस बी टी इज इंक्रीजिंग समथिंग लाइक दिस, मतलब टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, ये t है और ये q है, qt, तो ये बढ़ रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या है, ये t है, ये qt है, तो वो ये है e रेज टू द पावर माइनस bt। उसमें क्या था, दोनों फैक्टर घट रहे थे, यहां पर क्या है, दोनों एक्सपोनेंशियल निगेटिव था, e रेज टू द पावर माइनस 2b e raised to the power minus 8। तो केस नंबर 1, why it is heavily damped? Because both the factor are exponentially negative. Both the factor are exponentially negative and that's why it is heavily damped। यहां पर क्या हो रहा है कि एक फैक्टर निगेटिव है, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, and that's why it is known as critically damped। ये क्या है, this is critically damped। ठीक है, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड, माने डैम्पिंग थोड़ा सा कम हो गया। क्रिटिकली डैम्प का मतलब क्या हो गया, डैम्पिंग थोड़ा सा कम हो गया। तो केस नंबर 1 इज हैविली डैम्प्ड, केस नंबर 2 इज क्रिटिकली डैम्प्ड, और केस नंबर 3 क्या होगा,
ऑसिलेटरी। केस नंबर 3 इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी कहने का मतलब कि कहीं पर साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे सिंपल पेंडुलम में आप लिखते हैं ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी जहां भी आ गया वहां ऑसिलेटरी हो जाएगा, दैट विल बी दी ऑसिलेटरी। तो यहां पर तीसरा केस को, थर्ड केस में, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि ये बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब पी क्या होगा, पी जो है निगेटिव हो जाएगा, पी इज निगेटिव। तो पी निगेटिव को हम यह कर सकते हैं कि दिस इज -1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये। और फिर इस चीज को फिर हम लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अंडर रूट ऑफ -1 क्या हो गया, जे, अंडर रूट ऑफ माइनस ई जे, इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई। और ये जो हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ओमेगा डैश कर लीजिए, है ना, दिस इज योर ओमेगा डैश। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ पी, दिस इज वैल्यू ऑफ पी। तो इसका मतलब कि जहां जहां पी है, जहां जहां पी है वहां वहां क्या रख दें, जे ओमेगा डैश। मैं समझ रहे, जहां जहां पी है वहां वहां रख दें जे ओमेगा डैश। तो देखिए क्या होगा, जे ओमेगा डैश लिख करके ये इक्वेशन देखिए, यहां पे करंट का इक्वेशन हमारे पास है ना। तो आप इसी के आगे हम बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 12 कह रहा है, करंट का इक्वेशन में, आई टी इज इक्वल टू क्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पी ई रेस टू द पावर माइनस बी प्लस पी इंटू टी माइनस क्यू ओमेगा स्क्वायर 2 बी ई रेस टू द पावर दिस फैक्टर। अब हमारा ये कहना है पी के जगह पे हम जे ओमेगा डैश रख दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू क्यू ओमेगा स्क्वायर 2, पी के जगह पे क्या लिखना है, जे ओमेगा डैश, जे ओमेगा डैश ई रेस टू द पावर माइनस बी प्लस जे ओमेगा डैश टी माइनस क्या हो गया, क्यू ओमेगा स्क्वायर 2p ई रेस टू द पावर माइनस बी माइनस जे ओमेगा डैश, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, इट्स ओके। अब आप कॉमन लेने के मन कर रहा है, बहुत सारा फैक्टर्स है। यू सी क्यू ओमेगा स्क्वायर 2 जे ओमेगा डैश ई रेस टू द पावर माइनस बी टी, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, ई रेस टू द पावर जे ओमेगा डैश टी, है ना, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, ये क्या हो गया, ई रेस टू द पावर जे ओमेगा डैश टी माइनस ई रेस टू द पावर जे ओमेगा डैश टी। ई रेस टू द पावर जे ओमेगा डैश टी क्या होगा, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस जे
साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है, और ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी इज कॉस ओमेगा डैश टी माइनस जे साइन ओमेगा डैश टी होगा। मतलब इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं e raised to the power j omega dash t is cos omega dash t plus j sin omega dash t, है ना, और e raised to the power minus j omega dash t cos omega dash t minus j sin omega dash t, है ना। अब क्या करना है, माइनस, तो ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें और यहां पे प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस जे साइन ओमेगा डैश टी और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2j साइन ओमेगा डैश टी, है ना। उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा q ओमेगा स्क्वायर 2j ओमेगा डैश e रेस टू द पावर bt इंटू क्या होगा ब्रैकेट में 2j साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है। तो 2j कैंसिल हो गया, 2j कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा q ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा डैश e रेस टू द पावर माइनस bt इंटू साइन ओमेगा डैश टी, साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कहा था यहां पर कि a प्लस बीटी है, ये फैक्टर तो उतना ही है ना, करंट के एक्सप्रेशन में बीटी आया था 1 के साथ। अब यहां पर a प्लस बीटी के जगह पे क्या हो गया साइन ओमेगा डैश टी, ये साइन ओमेगा डैश टी इंडिकेट क्या कर रहा है कि इट इज ऑसिलेटरी, इट इज ऑसिलेटरी, लेकिन इसके साथ एक एसोसिएटेड है ई रेस टू द पावर माइनस बीटी एक्सपोनेंशियल। तो दोनों का अलग अलग यदि हम देखें कि ये दिस इज ई रेस टू द पावर माइनस बीटी का कर्व हो गया, है ना, और साइन का कर्व कैसे बनेगा, ये हो गया, दिस इज साइन ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है, ये टाइम हो गया साइन का कर्व। अब दोनों सुपर इंपोज करेगा, दोनों सुपर इंपोज करेगा, मतलब ऑसिलेशन भी होगा और उसका एम्पलीट्यूड घटेगा भी, ऑसिलेशन भी होगा उसका एम्पलीट्यूड घटेगा भी। तो एम्पलीट्यूड घटने का मतलब कि जैसे पहले ये था तो घट के ये हो जाए, फिर घट के ये हो जाए, तो फिर ये हो जाए, है ना। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दोनों को एक साथ, मतलब इस इक्वेशन को, करंट के इक्वेशन को एक साथ प्लॉट करें तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाता है, दिस इज ऑसिलेटरी, दिस इज ऑसिलेटरी। तो थर्ड केस क्या है, दिस थर्ड केस व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर इज द ऑसिलेटरी, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट हो गया, केस नंबर 1 हैविली डैम्प्ड, दोनों में एक्सपोनेंशियल निगेटिव आया। केस नंबर 2 क्रिटिकली डैम्प्ड, क्यों, एक एक्सपोनेंशियल डीके है और दूसरा ग्रोथ फंक्शन है। केस नंबर 3 में क्या है, एक डीके है और दूसरा साइनोसॉइडल फंक्शन है, ऑसिलेटरी। तो दोनों का मल्टीप्लाई
दोनों अलग अलग, ये दोनों को एक साथ देखेंगे, मतलब करंट का इक्वेशन यदि इधर से देखेंगे तो दिस इज द ऑसिलेटरी पार्ट. ठीक है. सो दिस इज टुडे लेक्चर. दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर with respect to inductor and resistance. Thank you.